Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new lecture series of computer awareness, which is going to be special for you people and that will help you in banking, SSC, JK SSB, Railway, UGC NET, police and other state level exams. And in this whole lecture series हम discuss करेंगे each and every aspect in detail. As आप यहाँ पे देख सकते हैं some special features of this series. It includes chapter wise theory in notes form, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this lecture series is going to be most important for you people, that will help you almost in all competitive exams like bank, PO and clerk, SSC, JK SSB and UGC NET and police and other state level exams. So we are going to cover almost the entire syllabus and मैं स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिवाइज़ करें ईच पार्ट एंड ईच चैप्टर एटलीस्ट ट्वाइस. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. स्पेशली आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप को, जहां मैं आपसे PDF शेयर करूंगा. अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वायरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देना मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे. And as usual we are going to start from chapter number 1, that is the introduction of computer. हम डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर को इन पार्ट्स, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड concepts properly. Okay, so in this first part of this chapter we are going to learn about the concept, functions and features of computer. So I start करते हैं हमारे टॉपिक को without any delay of time. First of all let's understand what is computer. जैसे कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि एक्सेप्ट करता है इनपुट, दैट इज़ डाटा, देन जो कि डाटा को प्रोसेस करता है थ्रू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट इज़ व्हाट वी नोन एज प्रोग्राम्स, देन दैट स्टोर दीज प्रोग्राम्स फॉर फ्यूचर यूज़ एंड प्रोवाइड एज ए मीनिंगफुल आउटपुट, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. So जो computers हैं they perform millions or even billions of calculations every second without getting tired or without making any mistakes as long as they are programmed correctly. So उनकी जो speed है that comes from पावरफुल प्रोसेसर्स जो कि हैंडल और सॉल्व करते हैं टास्क्स को मच फास्टर दैन ह्यूमन बींग्स, और उनकी जो एक्यूरेसी है दैट कम्स फ्रॉम देयर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एग्जैक्टली विदाउट कन्फ्यूजन और फॉरगेटफुलनेस. सो बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटीज़ जो कंप्यूटर है उसको ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है इन एवरी फील्ड लाइक इन बिजनेस, मेडिसिन, एजुकेशन, रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, that help people to solve problems, making decisions, creating new things and that improves our daily life. Now I discuss करते हैं about some important functions of computer. जो computer है it mainly perform 5 primary functions. These are input function, processing function, storage function, output function and controlling function. Through these functions जो computer है it perform or it handle complicated or difficult tasks very fastly and accurately. First बात करते हैं about input function. Input function जो है it is a function through which जो computer है it collect, it receive information from user or external devices, और ये जो information है it may come from different forms like it can be textual, that is typing words on keyboard. It can be in a audio form, that is speaking into a microphone, or it can be in a video form that is recording from webcam and commands, that is mouse clicking buttons or tapping or touch screen. And here are some devices जिनको यूज़ किया जाता है for input. These are keyboard जिसको यूज़ किया जाता है for entering text, और माउस जिसको यूज़ किया जाता है फॉर सिलेक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, स्कैनर्स जिनको यूज़ किया जाता है फॉर डिजिटाइजिंग डॉक्यूमेंट्स. सिमिलरली जो माइक्रोफोन है इसको यूज़ किया जाता है फॉर वॉइस इनपुट, एंड टच स्क्रीन इसको यूज़ किया जाता है फॉर टच बेस्ड इंस्ट्रक्शंस. सो टुगेदर ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं दीज डिवाइसेस हेल्प कैप्चर द डाटा, एंड वंस कंप्यूटर रिसीव्स डाटा then computer जो है that automatically
process that data and perform specific tasks. Now talking about processing function, जब कंप्यूटर रिसीव करता है इनपुट को, देन जो सीपीयू है वो एक्ट करता है लाइक अ ब्रेन, जो कि फॉलो करता है इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ रूल्स that are basically given by the programmers, that is software, in order to process that data. And process includes performing calculations, comparing data, making decisions, and moving or organizing information. वो जो CPU है, it carry out millions of these tasks or operations per second and complete these tasks very quickly and accurately. An important point here is to remember that कि processing जो है it follow several steps. These steps are, first is fetching. In this first step जो CPU है it receive or it obtain required information or data from computer memory, that is RAM. Then in step 2, that is decoding. In this step जो CPU है that interpret, that understand the received information and figure out what task had to be done. Then third step जो है that's executing. In this step जो CPU है it perform operation or any task like it adding numbers, it add numbers, that is arithmetic, or it compare different values, that is logic. Then in fourth step, that is storing. In this step जो CPU है that save the results either in temporary memory, that is RAM, और in permanent memory, that is ROM और storage devices. और ये जो steps हैं इनको together जाना जाता है as instruction cycle और machine cycle. Most of the times इन steps को exam में पूछा जाता है, so remember these steps in a chronological order. And in this processing function जो control unit और जो arithmetic logic unit है जो कि basically पार्ट है CPU के, वो प्ले करते हैं इम्पोर्टेंट रोल. लाइक जो कंट्रोल यूनिट है दैट इज CO, इट मैनेज एंड इट कंट्रोल और द एक्टिविटीज़ इनसाइड द कंप्यूटर. एंड CPU जो है दैट गाइड और दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन द CPU. जो CU है it guide or it directed the flow of data between the CPU, memory and input output devices. Basically जो control unit है it act like a traffic controller which aims at that हर एक task जो है वो happen, वो take place होनी चाहिए at a right time in a right order. Next is arithmetic logic unit, that is ALU, जो कि basically हमें responsible देखने को मिलता है for doing calculations like addition, subtraction, multiplication, as well as जो कि also perform करते हैं logical operations like comparing two numbers. So together जो CU और जो ALU है, these are the core aspects of CPU जो कि basically fetch, decode, execute and store करते हैं instructions को. Now third, talking about the storage function of computer. जो कंप्यूटर है it also store data permanently as well as temporarily for future use. और जो कंप्यूटर स्टोरेज है इसको डिवाइड किया जाता है into the two types: primary storage which is also called as volatile memory and secondary storage which is also called as non-volatile memory. Among which जो primary storage है it is a type of memory जो कि खाली स्टोर और होल्ड करता है डाटा को जब कंप्यूटर ऑन होता है, और जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं देन जो डाटा होता है हमारा वो डिसअपियर और वो लास्ट हो जाता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वोलाटाइल मेमोरी. एंड फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज आर रैम एंड रोम. एमंग विच जो रैम है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज़ ए टेम्पोररी स्टोरेज जो कि होल्ड करता है डाटा और प्रोग्राम्स को जो कि CPU यूज़ करता है, और डाटा जो है वो लास्ट होता है जब कंप्यूटर को ऑफ हम करते हैं. दैट मीन्स जो रैम है इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी. So that's why it is called as volatile memory. While if we talk about ROM, that is read only memory, it is a permanent storage. It include essential instructions जो कि हेल्प करते हैं कंप्यूटर्स को in storing and in starting and restarting, that is in booting, that is BIOS. And ये जो मेमोरी और ये जो डाटा है it does not last जब
हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। दैट्स वाई रोम जो है इसको हम जानते हैं एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड हियर दैट कि जो रोम है इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच इज़ बेसिकली a type of primary storage, and primary storage जो है it is itself है volatile memory, जो कि हम also आगे भी डिस्कस करेंगे in another chapter. Now talking about secondary storage, इसको हम also जानते हैं as non volatile memory. This type of memory store and keeps data जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ करते हैं, और ये जो टाइप है स्टोरेज का इसको यूज़ किया जाता है फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एंड हेयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, क्लाउड स्टोरेज, USB ड्राइव्स, CDs एक्स्ट्रा. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी स्टोरेज है इट इज़ वेरी फास्ट बट टेम्पोररी, वाइल जो सेकेंडरी स्टोरेज है इट इज़ स्लोवर बट इट इज़ परमानेंट. Now for talking about the output function of computer, जो output function है it is about showing the results of what the computer has processed. So जो output function है it shows us results in a way through which we can easily understand it. So ये जो output है it can be text, like it can be documents, images like photos, audios like music, videos like movies. एंड हेयर आर सम डिवाइसेस जिनको यूज़ किया जाता है फॉर आउटपुट, लाइक मोनीटर जो है इट डिस्प्ले विजुअल आउटपुट जिसको हम देख सकते हैं ऑन स्क्रीन. इसी तरह प्रिंटर जो है इट क्रिएट हार्ड कॉपीज़. इसी तरह स्पीकर्स जो है इनको यूज़ किया जाता है फॉर आउटपुट ऑडियो सिग्नल्स. इसी तरह प्रोजेक्टर्स जो है दैट आर द लार्ज डिस्प्लेज जिनको यूज़ किया जाता है फॉर वाइडर ऑडियंस. ठीक है. नाउ फिर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर. जो कंट्रोल फंक्शन है कंप्यूटर की इट इज़ अबाउट टू मैनेज एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑपरेशंस एंड टास्क्स. थ्रू दिस फंक्शन जो कंप्यूटर है इट मैनेज कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशंस एंड टास्क्स फ्रॉम इनपुट अप टू द आउटपुट. और जो कंट्रोल यूनिट है विद इन द CPU दैट प्लेस ए वेरी क्रूशियल रोल इन दिस फंक्शन, जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है सभी एक्टिविटीज़ को विद इन द कंप्यूटर, जो कि मैनेज करता है फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन इनपुट प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट कंपोनेंट्स. और ये जो कंट्रोल यूनिट है इट डायरेक्ट्स, इट गाइड्स अदर पार्ट्स ऑफ CPU लाइक मेमोरी एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शंस. और जो रोल और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटर फंक्शन की दैट इज़ टू डायरेक्ट डाटा फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स, लाइक इट जो कंट्रोल यूनिट है दैट एंश्योर्स कि जो डाटा है दैट शुड मूव स्मूथली बिटवीन CPU, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट इट आल्सो मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. जो कंट्रोल यूनिट है इट आल्सो कंट्रोल when and how data is received from input devices and when the result are sent to output devices. Third जो control unit है it also synchronize tasks and processes. Means जो control unit है it perform multiple processes in a sequence, जो कि divide करता है बहुत सारे operations को in different parts. So all of these responsibilities or rules these help computer to perform any function smoothly. Overall अगर हम देखें ये जो 5 functions है कंप्यूटर की इंक्लूडिंग इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोल, these functions work together to provide powerful computing capabilities. and ये जो functions हैं these functions help computer to perform simple and complex tasks. Now I डिस्कस करते हैं another topic that is the features of computer. जो कंप्यूटर है इसको जाना जाता है for it is unique and powerful features like speed. जो कंप्यूटर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं बहुत सारे टास्क्स, प्रोसेसेस, वो प्रोसेस करते हैं डाटा को एट ए वेरी हाई स्पीड, जो कि कंप्लीट करते हैं टास्क्स को इन सेकंड्स और इवन मिली सेकंड्स, जो कि ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म कर सकते हैं इन ए लॉन्ग टाइम. जो कि कंप्यूटर्स हैं वो उन टास्क्स को परफॉर्म करते हैं इन सेकंड्स और मिली सेकंड्स. लाइक फॉर एग्जांपल जब हम सर्च करते हैं समथिंग ऑन इंटरनेट इट टेक्स ओनली फ्यू सेकंड्स. सिमिलरली
एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर्स हैं प्रोसेस करते हैं डाटा को विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी विदाउट मेकिंग मिस्टेक्स एज लॉन्ग एज दे आर करेक्टली प्रोग्राम्ड। और एरर्स हमें तब देखने को मिल सकते हैं जब यूज़र इनकरेक्ट इनपुट दे सकता है और दैट में आकर ड्यू टू द फॉल्टी प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है इट परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्यूरेटली और फ्रीली विदाउट एनी एरर व्हेन प्रोग्राम्ड करेक्टली। सिमिलरली ऑटोमेशन, वंस डाटा जब प्रोग्राम किया जाता है इनटू द कंप्यूटर देन कंप्यूटर जो है दैट ऑटोमेटिकली perform that automatically repeat tasks without needing human intervention, जो कि सेव करते हैं हमारी टाइम और एफर्ट को। लाइक फॉर एग्जांपल ईमेल शेड्यूलिंग या सिस्टम बैकअप्स की अगर हम बात करें। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेबिलिटी, जो कंप्यूटर है इट कैन आल्सो स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा फ्रॉम सिंपल डॉक्यूमेंट्स अप टू द कम्प्लेक्स डेटाबेस, जिनको हम कभी भी लोकेट और यूज़ कर सकते हैं व्हेन एवर वी नीड इट। एज अर्लियर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो कंप्यूटर स्टोरेज है इट इंक्लूड बोथ टेम्पोररी दैट इज रैम एंड परमानेंट दैट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस एंड क्लाउड स्टोरेज। फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर्स हैं वो स्टोर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज़ और मल्टीमीडिया फाइल्स को फॉर ईयर्स। नेक्स्ट इज वर्सटैलिटी, which means जो कंप्यूटर है it can handle or it can perform different or wide range of tasks from basic word processing up to the complex data analysis, graphics creation and machine learning. So that's why जो computers हैं इनको यूज़ किया जाता है in various fields like in healthcare, engineering, entertainment, education. For example एक सिंगल कंप्यूटर जो है दैट कैन परफॉर्म वेरियस टास्क्स एट द सेम टाइम, लाइक इट कैन रन एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एट द सेम, इट कैन ब्राउज इंटरनेट एंड एडिट वीडियोस और फोटोज साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी, जो कंप्यूटर है इट आल्सो कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड थ्रू विच जो कंप्यूटर्स हैं दैट कनेक्ट एंड दैट कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ग्लोबली, that makes information more accessible and shareable instantly. For example अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो थ्रू इंटरनेट इट मेक्स इंफॉर्मेशन मोर accessible and shareable instantly. Similarly multitasking, जो कंप्यूटर्स हैं वो also परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टास्क्स को एट द सेम टाइम विदाउट अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। लाइक फॉर एग्जांपल while listening to music हम ब्राउज कर सकते हैं इंटरनेट को या हम एडिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट इज़ reliability, जो कंप्यूटर्स हैं दैट आर हाईली reliable, मीन्स जो कंप्यूटर्स हैं दे कैन रन और दे कैन वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड व्हेन प्रॉपरली मेंटेन्ड और चार्जड। लाइक फॉर एग्जांपल हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स को 24/7 विदाउट एनी डाउन टाइम। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, जो कंप्यूटर्स हैं दे आल्सो मेक्स आवर कम्युनिकेशन मोर ईजियर थ्रू इंटरनेट, emails, chat, social media and video calls. Like for example हम send करते हैं real time message via messaging apps. Similarly next is intelligence, AI capabilities in modern computers, जो artificial intelligence और जो machine learning tools हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं for solving complex problems like अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट्स लाइक सिरी और गूगल असिस्टेंट्स की बात करें। सिमिलरली कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑटोमेशन और जो एफिशिएंसी है कंप्यूटर्स की दैट हैड रिड्यूस्ड आवर टाइम, दैट हैड रिड्यूस्ड आवर आल्सो कॉस्ट, दैट सेव्ड आवर टाइम एंड एफर्ट, स्पेशली दैट सेव आवर लेबर कॉस्ट। सिमिलरली जो कंप्यूटर्स हैं दैट आल्सो प्रोवाइड अस डेटा सिक्योरिटी, लाइक वो हमें प्रोवाइड करते हैं इनक्रिप्शन एंड अदर सिक्योरिटी मेजर्स थ्रू विच हम इजीली सिक्योर कर सकते हैं हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को। लाइक फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जो है दैट सेव अस फ्रॉम डेटा सिक्योरिटी रिस्क्स। सो ऑल ऑफ दीज फीचर्स जो है दैट मेड कंप्यूटर एन एसेंशियल पार्ट ऑलमोस्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ फ्रॉम पर्सनल यूज अप टू द बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कभी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स
और आप आल्सो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ मैं आपसे PDF शेयर करूँगा। अदरवाइज यू कैन आल्सो मेल मी ऑन माई email अगर आपको कोई क्वारी या डाउट हो। So that's it. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.